in different capacities. Okay, so ma'am. A very good morning to one and all. I'm Dr. Meenakshi Gupta, Principal SD Public School, associated with the CBSE for different genres of work for the last more than 12-13 years as a resource person. And it's a privilege and honor for me to interact with all of you today with my co-resource person, Dr. Pushpendra. And I hope whatever little insight, whatever little knowledge both of us have, that we will share with you, and whatever we could, somehow help you out in improvising yourself, improving your institutions, improving the quality of education. We would be able to do little effort in that. And of course, we both are going to learn a lot from all of you. And this is how we all learn. We learn from each other. So all those who are the part of the school, the present school, and all those who are coming out of the school, from out of the school, some other schools, please do interact and exchange and talk to each other, share whatever you are doing, because sharing is learning, right? So all these workshops that are there, because now CBSE has made mandatory to for these workshops to be attended. These are an effort to make you come out of the shell and then get an exposure to a wider world. So let us all be learners today. We all are learners. We both are learners. Standing in front of you, and I'm very sure we both are going to learn a lot from all of you. And I'm sure whatever little effort we can put in, whatever little small steps, ways we can help you out in doing your work in a better way for the quality education, we both will try to do that. Thank you. Begin Dr. Pushpendra करेंगे, and after that I will take another session. तो हम दोनों मिलकर ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बस एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, पहली बात तो डोंट वरी, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों को बहुत अच्छे से आती है. तो whichever language you both want, you can use that. There is no language hindrance, right? और दूसरी बात, अगर आपको कुछ कहना है या कुछ पूछना है या कुछ क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज हेसिटेट मत करिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो लाइक यू ओनली ना, हम भी आपके जैसे ही हैं. 20 साल मैं भी उस तरफ ही रही हूँ टेबल पे, अभी 14-15 साल से ही इस तरफ आई, तो ऐसा कुछ नहीं है. We all are teachers, we all are learners, so don't hesitate in asking, giving your opinions, giving your suggestions, giving what you are thinking. क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ लर्निंग नहीं. ठीक है? Thank you so much. Over to Dr. Pushpendra. Thank you so much, ma'am. Rightly said that until and unless we don't interact with each other, there is no learning. So learning के लिए जरूरी क्या है? Go. Rock, paper, scissors. एक ही तो नहीं, और बेस्ट टू होता है. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. ये क्या मतलब एक दूसरे को चीयर नहीं कर रहे हैं? मैंने बोला था बच्चे कहाँ हैं? चीज द विनर. आइए मैम इस तरफ आ जाइए, सारे लोग इस तरफ आइए. So she is the winner. Change. So she is the winner. दो बार रखे हुए. तो अब सारे लोग आ जाइए. आप में से जिनको बाई मिला था वो कौन से लोग थे? चारों थे. आइए इधर, चारों आ जाइए. 1 2 3 4 यहाँ पे आइए.
सर आप तो यहाँ थे, ऐसे नहीं, इधर आइए, इधर आइए। जीवन में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे कौन जीता है? आप जी, आप आइए। कौन था? आइए सर, यहाँ पे, ठीक। मैम के साथ आपका क्या कहते हैं? आप हारे थे? वो पीछे आप, फिर क्या बात है? फिर तो कोई बात नहीं, खड़े रहिए। ओके, सो नाउ देयर आर टू ओपोनेंट्स। मैम प्लीज यहाँ पे आइए, और मैम आप यहाँ पे आइए। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? मैम आपका नाम क्या है? निशा मैम। और आपका नाम? प्रीति मैम। सो प्रीति मैम को चीयर करने वाले लोग इस तरफ खड़े हैं, और निशा मैम को चीयर करने वाले लोग इस तरफ खड़े हैं, ठीक है? नाउ I want that you should cheer. We will get now one Roshanpur Rock Star of the Day. एक मिलेगा हमें, इधर निशा और प्रीति, ठीक है? So 1, 2, 3, go. So प्रीति मैम आप यहाँ पे आ जाइए, बाकी सब लोग अपनी जगह पे चलिए, प्लीज प्लीज सीटें। निशा मैम, ठीक है, बाकी सारे लोग प्लीज। I knew because in 9 only stars are there, that's why she just chose 5 star. Okay, so congratulations, let's clap for her. Would you like to say something to them, please? Thank you so much. Thank you ही बोल दो माइक पे। So look, learning without fun is boring. Yes. Got it? Yes. What was the purpose of this activity? Can someone tell? What was the purpose of this activity? Yes, ma'am. क्लास में भी जब हम पढ़ाएं बच्चों को, तो साथ के साथ कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराएं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट वापस उसमें आ सके। And incentives should be given. Okay. मैं क्लास के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अभी इस एक्टिविटी को मैंने क्यों कराया होगा? Okay, very good. Mindfulness. सीखा क्या आपने इस एक्टिविटी से? Okay, so that means there was one communication. Coordination, collaboration, isn't it? Team building, very good. The most important thing, winning or losing is not important. Yes. Participation is important. क्योंकि जिससे आप हारे थे, अगले पंक्ति को आप क्या कर रहे थे? Cheer कर रहे थे. So team is important. Clear? So that means we need to understand. और सबसे बड़ी बात है, जब आप सुबह चले थे, so you thought पता नहीं अब आज क्या ही होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, stress situation, God knows what will happen, how we will just do it, and what they are going to teach us. Stress था, isn't it? कुछ लोग फरीदाबाद से आ रहे हैं, ऑलरेडी वहां से आने का स्ट्रेस, ठीक है? और भी कहीं से लोग आ रहे हैं, कहां से, बाहर से भी कुछ लोग हैं, गुड़गांव से मेहमान हैं, हाँ, पलवल, किस स्कूल से पलवल में? ओके, हाँ, सोनीपत से। See, when we want to learn, learning is possible, and probably all of you have been here to learn something, isn't it? Yes. And if we have come for learning, so the most important part is that we must learn today. And when we say learn, that does not mean only we just talk about few things and be idle seated here and then just go back. If you have come here, you have paid, then you must learn something.
and learn useful which can be applied in your life also. We talk about mental health, है ना? बहुत सारी बातें हम करते हैं कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ? और किसकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है? किसकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है? एनीवन हु कैन टेल मी? टीचर्स. मुझे पता है सबसे पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि so we talk about mental health, and this is a complicated thing, isn't it? So जब मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है. इट इज नॉट टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम. हालांकि टीचर की भी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, मैं आपको निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों ही जब हेल्दी होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, then only you will be able to deliver the things and you will be able to receive the things. Isn't it? So mental health, when we talk about, what do you understand by mental health? Anyone? Emotionally, physically, socially, psychologically. Okay. So when we talk about its importance, we need to understand. So because mental health affects not only the students, the teacher, or everyone. So it determines how they handle the stress and make choices. Essential at every stage of development, whether you are a small child or at your grown-up stage or at even at a bigger stage. Any stage of development in your life, you are there, mental health affects. And when it affects, something needs to be done about it. And when I say something needs to be done, we need to understand. I have seen a generous comment. Normally, I have seen that students pass a general comment or teacher pass a general comment. बच्चों को इतना छोटा सा तो है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो इतना परेशान है, जो इतना स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चला जाए. आप लोग सब लोग ये जनरस कमेंट जरूर पास करते हो कभी ना कभी, और ये फैक्ट है. We need to accept it. सर उसकी सोसाइटी उतनी सी ही है, वही उसके लिए उसमें ही इसको प्रॉब्लम्स उसके लेवल पर बहुत है. नहीं, मैं बहुत कुछ चल रहा है इसमें. एक तो पहले सिस्टम था हम लोगों के जमाने में, जो हम लोग मिलेनियल्स हैं, ठीक है, उससे पहले वाले हैं, तो हम लोगों के समय में क्या कहते हैं, हमें डोजेस मिलते थे. गाँव वालों को तो अभी मिलते हैं, जो पलवल से आ रहे हैं हमें पता है, ठीक है, सोनीपत वालों को पता है कि हमें ब्रेकफास्ट का डोज एक मिलता था, लंच वाला एक डोज मिलता था, फिर इवनिंग का एक डोज मिलता था. सब बिल्कुल ठीक ठाक रहता था, कभी स्ट्रेस लाइफ में पता ही नहीं चला. लेकिन when we talk about the Gen Zs and Gen Alpha, क्योंकि अब आप Gen Zs और Gen Alpha से, यहाँ पे भी कुछ लोग Gen Zs होंगे. 2000 के बाद के बॉर्न कितने सारे लोग हैं यहाँ पे? मेरा हाथ में 2000 बॉर्न, okay, so they are Gen Zs, okay, and 2015 के बाद के बच्चे भी अब आपके पास आ रहे हैं, isn't it? So that means we are dealing with Gen Zs and Gen Alpha. 2025 में जो पैदा हो रहे हैं, वो जब आपके पास आएंगे तो वो बीटा होंगे, Gen Beta, ठीक. And this is not the same thing. Society is not the same. It is changing, and that's why we need
टू अंडरस्टैंड। एक समय था पहले जब हम लोग थे तो सबके लगभग 2-2, 4-4, 3-3 बच्चे होते थे, ठीक है, एक को पढ़ता था, बाकी सब तक अपने आप पहुंच जाता था मैसेज, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आजकल लाइफ में सबके पास एक ही बच्चा है, और वो एक बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप भी उसे नहीं डांटते हैं। तुम्हारी तो हिम्मत ही क्या है, बोलते हैं ना, आपने पीटीएम में सुना होगा कि मैं तो कुछ नहीं कहती अपने बच्चे को, आप कौन होते हैं कहने वाले। दिस इज द कॉज। सबका एक एक बच्चा है, वो पहले वाली फिलॉसफी चली गई। जब 1980s में बेबी बूम हुआ, 70s के बाद तो ये हुआ हम दो हमारे दो, ठीक है। फिर 2001 आया तो कहने लगे पहला अभी नहीं, दूसरा कभी नहीं, ठीक है। और अब कहते हैं हम दो हमारा कोई नहीं। क्यों इतनी मुसीबत ही क्यों लेनी है, शादी ही नहीं करनी, हम अकेले अकेले ही अच्छे। नो चैट भूलो, कहते नो शादी पॉलिसी, isn't it? With the change of time, mental health becomes important. देख रही हूँ। Empathy. जी। Can someone tell what is empathy? Yes, ma'am, please. सिंपली मीन्स कि जैसे मानो आपको कोई कहते ना दुख है तो हम कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, दैट्स सिंपल। एम्पैथी मतलब आप जिस कंडीशन में हो मैं अपने आप को उस कंडीशन में रख के वो चीज फील कर, दैट इज एम्पैथी। So, sympathy, for example, आप रोड से जा रहे थे, कोई गिर गया और आपने इमीडिएटली अरे भाई इसको चोट लग गई और आपने sympathy दिखाई, उसे हॉस्पिटल ले गए। That was sympathy. But when you feel the same pain, उसको जितनी चोट लगी और वो आपको फील हो रहा है दर्द, that is empathy. Clear? So, putting yourself in others' shoes, that is empathy. दूसरे को दर्द को जब आप महसूस करें उसे हम एम्पैथी बोलते हैं, and this need to be embedded in our curriculum. Then we talk about mindfulness. किसी ने नाम लिया था सुबह सुबह, mindfulness की बात की थी, ठीक। So mindful education आजकल तो पूरा curriculum का पार्ट है। We talk about this. So based on activities such as meditation, breathing exercise to help a student manage stress, improve their emotional control. So for this mindfulness is required. Then promote connectedness. आज की दुनिया में रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, है ना? मैंने बताया सबसे बड़ा रीजन तो आपके हाथों में है। देखिए मैं पढ़ा कुछ सिखा रहा हूं, फिर भी आप लोग फोन पे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? We have come here to learn the same way. What is happening? Building relationship is important. Where is me time? घर पे आप पहुंचते हैं, हस्बैंड का फोन, आप दोनों एक ही बेड पे हैं, हस्बैंड अपना फोन लेके, वाइफ अपना फोन लेके, बच्चा अपना फोन लेके लगा हुआ है, पर बात नहीं कर रहे हैं। सरप्राइजिंग, देयर इज नो मी टाइम। नहीं, ये सबका है, आज की दुनिया में ये सबके लिए है। The same goes for students, staff, families. Support you. I have made a rule at my home. During dinner, no phone, no TV. और सारे लोग बैठ के एक साथ ही करेंगे। कोई अपने रूम में नहीं, कोई कहीं नहीं, सब एक साथ बैठेंगे एक ही जगह पे। Make some rules like this. वरना जीवन में अकेले जीने के लिए बहाने बहुत हैं, साथ में जीने के लिए सोचिए। So same pants
and supportive environment where the student feels secure, valued and free from bullying. Anti-bullying zone, or you must have written in the school everywhere it is written. ठीक है, bullying free zone. So these are important in our life. This can include clear and anti-bullying policies. हर एक स्कूल में होती है, SOPs भी हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज भी होते हैं, वेलनेस रूम्स फॉर रिलैक्सेशन, हालांकि ये अभी नहीं है जो होने चाहिए. ठीक है, फॉरेन में बहुत सारे स्कूल में एक सिस्टम बनाया गया है जहां पे जब आप स्ट्रेस होते हैं तो अपना गुस्सा शांत करने के लिए आप वहां जाके आप चिल्लाते नहीं रो, जितना हो चिल्लाइए, जितना लाओ. ठीक है, burst out your emotions. So such type of things are required. Mental health literacy, that is also need to be. What happens when we talk about mental health literacy? The term, whenever we say, there is a stigma attached to it. जैसे स्ट्रेस और इन सब की, और जैसे मैंने बोला काउंसलर के पास आपको भेजा जाएगा, द वर्ड काउंसलर आते ही मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंटली, सबसे बड़ा स्टिग्मा यही है. अगर आपको जुकाम होता है, आपको फीवर आता है, तो फिजिशियन के पास जाते हैं. अगर आपको चेस्ट पेन या हार्ट से कुछ होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. द सेम वे, अगर यहां प्रॉब्लम है तो क्या घर पे बैठ के ठीक होगी, वो जाना पड़ेगा. बट स्टिग्मा अटैच्ड है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पागल है, इसका बच्चा तो पागल हो गया. दैट इज अ प्रॉब्लम. और आधे बच्चे तो इसी वजह से हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर टाइम और प्रॉपर मेडिकेशन एट द राइट टाइम. So coping skills, utilize resources. Now low stress routines should be there. How we teach in our classroom so that there is a less stress to the students. What need to be done? जैसे सुबह मैंने एक एक्टिविटी की, आते ही उस एक्टिविटी का क्या पर्पस था कि जो भी स्ट्रेस है, एटलीस्ट घर से भी आप कुछ लेके आते हैं, बहुत कुछ है ना, सुबह सुबह बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो कम से कम यहां जब बैठे तो आपको ये फीलिंग हो कि नहीं, वी हैव कम हियर टू लर्न समथिंग. क्लियर? सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नाउ ग्रेटिट्यूड लर्निंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आजकल बच्चों में है ही नहीं, टीचर ही ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, एक दूसरे से सीखना भी नहीं चाहते, और सीखते हैं तो उसके बाद भी थैंक यू नहीं बोलते. दिस इज रिक्वायर्ड. बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड की वैल्यू क्या है. Isn't it? So, feeling safe, be thankful, show kindness, sharing and caring, listen and support, calm and positive. So these are the things which need to be taught. Once we teach these things in our practice, in our teaching, if we practice it, then it will have impact. Clear? Now, and at last जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी तक हमने बच्चों के बारे में बात की, अब आपके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज मेंटल हेल्थ आपकी भी इंपॉर्टेंट है. Isn't it? So, anxious, अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान न दिया जाए तो क्या क्या होगा? You will feel anxious, anxiety issues. ठीक है, डिसरेगुलेटेड स्टूडेंट्स, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को कैसे मैनेज करोगे? Isn't it? Then surface level social emotional learning,
It will not be deeper. Then control based discipline, जहां पे आप थंब रोल पिन करके डिसिप्लिन लाना चाहते हैं. डिसिप्लिन वो नहीं है जहां पे आपसे लोग डर करके डिसिप्लिन हो. डिसिप्लिन वो है जहां पे बच्चा आपके साथ सब कुछ शेयर भी करे और आपकी क्लासरूम बिल्कुल अच्छी भी है, तब वो डिसिप्लिन कहलाता है. देन हाई टीचर टर्नओवर. If your mental health is good, then only it is possible. Your output, your potential will be utilized. And emotionally unsafe school, if you are not safe, if you are not emotionally well, then what will happen? It will affect the child. घर का गुस्सा बाहर निकल सकता है. और बच्चे बोलते भी हैं कि घर से लड़के आए थे आप जो आज हम ही को क्या कहते मिले आपको. And this is a fact. In this world, everyone is trying to find a dumping yard. अपने घर से निकलता है, पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन होके निकलते हैं और देखा सामने रिक्शा वाला जा रहा है, थोड़ा सा इधर हुआ उसको गाली दे दी चाहिए. इसी तरीके से करते हुए हम लोग निकलते हैं और जिसको भी जहां लगता है ना अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे डंप कर देता है. अगर कर पाया तो अपने से, अगर सीनियर है और अपने से अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है तो उसके सामने नहीं कर पाता है तो मन ही मन करता है. Isn't it? So emotional well-being is important for each and everyone. Unchecked, this is how good school slowly becomes emotionally unsafe if we do not check our teachers. So teachers' mental health is also
बच्चों ने आंसर लिख दिया, मार्क्स दे दिए, बच्चे के नंबर आ गए, बच्चा पास हो गया। बच्चे ने असर नहीं करा है, बच्चा फेल हो गया। क्या हम बच्चे के पूरे साल के असेसमेंट में 6 महीने की 3 महीने की पढ़ाई को एक आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे के टेस्ट में जान सकते हैं? Are we justifying that? So what is assessment? Assessment सिर्फ पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं होता, and that is why NEP is coming up with 360-degree assessment, and that is why the concept of holistic progress card (HPC) has come into. Tracking student progress across the school year. This is what HPC is talking about. And then redesigning report cards, holistic report card, and standard setting and aggregation. This is for the schools to impart quality education. Now there are various, this is, I think everybody knows, मुझे इसमें बताने की जरूरत अब है नहीं आप लोगों को, पुरानी बात हो गई है। पहले 10+2 था, 10+2+3, 10th तक का सेकेंडरी था, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी था, उसके बाद 3 years का ग्रेजुएशन था। But now the things are changed. The school education is divided into 4 segments. The first is the foundation years, which starts from 3 years. Balvatika 1, Balvatika 2. Now in Delhi, Balvatika 3 is also will be implemented from next to next session. And then you have 2 years of class 1 and 2. 3 years of Balvatika, 2 years of class 1 and 2, and then you have preparatory from class 3 to 5, and then you have middle, which is class 6 to 8, and then you have secondary. There is no distinction between senior secondary and secondary. 9 to 12 you have secondary. So there are, these are the basic changes. Now these are the salient features. Foundation stage. The most important thing for the foundation stage is to have lot of play-based experiential activities, toy-based pedagogy to be used. Children should be given an environment to learn. Children should be given a lot of pedagogies like storytelling, clay modeling, these kind of activities to be there, and then focus more on their psychomotor development. Not only on cognitive, but their psychomotor development is also very important, so that a lot of physical activities to be included for the young children. And then for the preparatory stage, again, it is a similar thing, but a little, moving them towards reading, little bit of writing, so that they are being, little prepared for coming into the formal kind of education. And then you have middle stage, 6 to 8, the most important and crucial year, where you will find that NEP recommends to have vocational education. अभी आप लोगों ने देखा होगा नई बुक्स भी आ गई हैं CBSE की स्किल एजुकेशन पे. So why this has been done? Because NEP is recommending on the development of the employability skill. आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट हम तभी बनेंगे जब हमारे पास कोई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी. As you all know very well, the number of the government vacancies. It was previously also, but that was named as SUPA. SUPA, yes. Yeah, I used to learn this in my There school. was earlier also, but now it has been made more systematic, and the thing is, for the SUPA we were doing it only with the teachers, but now industry, kind of coordination, collaboration is required for that. And I think CII is the organization which is working a lot for that. So a lot of industry visits, giving the children a skill where they can use that to have employment later on is being introduced, and which is a very good, kind of a 4 periods per week have been recommended by CBSE for that. So that is in the middle, and then of course 3 languages are there. Can we share whatever thoughts we have with each one rather than discussing in the group? That would be great.
So, 3 languages again in the middle. I'll talk about language education, and then for the secondary stage, again there is no division of and secondary, and there is no segments of humanities, arts, commerce. So, all the streams are open now. Children can opt for any subject. Of course, there are some groups. The subjects have been divided in some groups, and the clear instructions that one language, 2 subjects from group A, 2 subjects from group B have been given by CBSE. Like we opt in graduation and post-graduation. So, these are the important recommendations. No silos among subjects. Art and sports integration, very important. Art integration projects हम सब करा रहे हैं 9th 10th में. 9th 10th के टीचर्स सब बहुत अच्छे से जाते होंगे. इस बार का क्या वो है टॉपिक? सिक्किम के बाद अब उसके बाद क्या आया हुआ है नेक्स्ट इस बार? आई थिंक इट्स अंडमान निकोबार. अभी हमारे यहाँ तो सिक्किम ही है. It's अंडमान निकोबार now. And then we have development of scientific temper. Then we have emphasis on digital literacy. Digital literacy is very important. हम अभी बात करते हैं कि बच्चों को बाहर रखना है, बाहर दूर रखना है. But at the same time, you need to equip them with their digital literacy also. वो digitally imprisoned है, arrest है, वो digitally literate नहीं. डिजिटल लिटरेसी वो होती है कि जब आपको मतलब आप स्लेव नहीं बनते, आप मास्टर बन जाते हैं. दैट इज द डिफरेंस. अभी हम स्लेव हैं, अभी हम डिजिटलाइजेशन के स्लेव हैं. देखना शुरू करते हैं और हम जिस दिन हम उस डिजिटल, अभी सर ने इतनी आपको खूबसूरत सी वीडियो दिखाई. He would have searched for it. No. Right? He would have found it out, and then he would have, because हम लोगों को ये सब CBSE नहीं देता है हर चीज. ठीक है ना? CBSE हमें बेसिक सी बना के दे देता है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हम अपना करते हैं कुछ. उसके लिए हम सर्च करते हैं, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं. तो उस टेक्नोलॉजी को डिजिटली अपने को कितना हम इक्विप कर पाते हैं कि हम उसको अपने पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके बेटरमेंट के लिए यूज करें, वो बच्चों को बताना. राइट? एंड देन वी हैव बैगलेस डेज. आई थिंक एवरी स्कूल इज 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर where the children are given full exposure to the kind of the lot of curricular activities, lot of fun. Learning should be fun. We started the session with that note that learning should be fun. And then promotion of multilingual teaching. सुबह सर ने बोला 6 लैंग्वेजेस बच्चे को एक साथ सिखा सकते हैं. हम कितनी लैंग्वेजेस सिखाते हैं बच्चे को जब बच्चा किंडरगार्टन में आता है? 2 ही होती है. थर्ड मदर टंग ही लर्न. और आपको पता है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में बच्चे मिनिमम 3 लैंग्वेजेस अपने आप सीख रहे हैं. Yes, sir, you want to say something? Please share it with others also. आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ. Yes, we were talking about the kindergarten. Yeah. हाँ. So in that they are teaching only in English. They are not teaching counting Hindi. That is what NEP is talking about. That is why NEP is talking about that medium of instructions in the foundation years should be, minimum foundation years should be mother tongue. Right? And thankfully we are living in metropolitan. मेट्रोपॉलिटन में एक लैंग्वेज तो बच्चा अपने घर की सीख कर आता है और जरूरी नहीं है वो हिंदी हो. हिंदी बहुत कम होती है. इंग्लिश दिल्ली में हिंदी बहुत कम मिलेगी. आपको पंजाबी स्पीकिंग मिलेंगे, गुजराती स्पीकिंग मिलेंगे, बंगाली स्पीकिंग मिलेंगे. आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे एक ही क्लास में बैठे हुए. सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होती है जो वो सुन रहे हैं आसपास में, उनको ऑलरेडी आती है. इंग्लिश बिकम थर्ड लैंग्वेज. एंड वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर दैट. यही बोला गया है कि
जितनी मैक्सिमम लैंग्वेजेस आप बच्चे को बचपन में सिखा देते उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। अब एक टीचर इतनी सारी लैंग्वेजेस टीचर को भी नहीं आती, तो हाउ टू डू दैट? द बेस्ट वे इज गिविंग एग्जाम्पल्स, लेटिंग द चिल्ड्रन गिव एग्जाम्पल्स इन द क्लास। हम सुनना ही नहीं चाहते, बेसिकल प्रॉब्लम होती है कि टीचर सुनना ही नहीं चाहती। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे सुन लो। The moment I start giving that exposure to the children to talk in their own language, if they are not able to understand, then let us use our body gestures, facial expressions, what we call total physical response, PPR. Language can be understood, right? So multilingualism is being promoted, and then competency focused education should be there. Now most important thing is the LOs, learning outcomes. अभी तक हम learning objectives की बात करते थे, लेकिन अब हम learning outcomes की बात कर रहे हैं। What are learning outcomes? क्या होता है learning outcomes? What the child has learned. मैम जैसे कि हमने बच्चों को सिखाया और सीखने के बाद से बच्चा उसको आपको हमें बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, दिस इज लर्निंग आउटकम। जो हमने सिखाया है और वो बता रहा है कि जो हमने उसको सिखाया है बच्चे से आ गया है, दिस इज लर्निंग आउटकम। Absolutely. Learning outcomes are the change in the behavior of the child after one particular, topic has been done in the class. So learning outcome is something which the child is showing. Learning outcome ये नहीं है जो हमने अभी बताया कि वो जो डॉग है वो विसल नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने उसे विसल करना सिखा दिया। So the learning outcome is when the dog starts whistling, then that will be my The learning. child is reflecting actually. What the child is reflecting, what the child is showing, what the child is able to bring a difference in the child's behavior or the outcome. That is what learning outcome is. Twenty-first century skills क्या होगी? अभी हम लाइफ स्किल की बात कर रहे थे, ना कि बच्चों को 360 डिग्री उनका कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है हमें। तो क्या है स्किल्स जो हमें जरूरत है? देखिए NEP is talking about skill. NEP is a shift from knowledge to skill. NEP is talking about the development of the skills in a child. Now language acquisition is also a skill. Language is not a subject. No, language is not a knowledge. It is a skill. तो आज के टाइम पर 21st सेंचुरी में हमें किन स्किल्स की जरूरत है एज अ पर्सन, एज अ सक्सेसफुल पर्सन? चाहे अगर हम आज के दिन हम किसी जॉब के लिए जाएं या हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, तो वो क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे कि हम एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ लीड करें? कम्युनिकेशन, critical thinking, creativity, problem solving, personality development, critical thinking, collaboration, multitasking, smart in learning, okay, decision making. So this is what a competency is. Desired knowledge, skill and behavior of a student at the end of the course, and it commonly defines the applied skills and knowledge. Now these are the basic 21st century competencies. 7 C's. अब ये competencies क्या है? ये competencies वो है जो हर बच्चे के अंदर आनी चाहिए. By the end of 12 years of education, 14 years of education, every child should have developed these competencies. So these are creativity and innovation, वही है जो आप लोगों ने अभी बताया है. Critical thinking and problem solving, capacity for lifelong learning, collaboration, communication, citizenship and character. This is missing now. मेरे constitutional rights क्या हैं और मेरे rights तो सबको पता है. At this point,
लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या हैं? पेट्रियाटिज्म, लव फॉर माई कंट्री, and then you have computational thinking, which we all are very much aware about. Health education. अभी सर ने मेंटल हेल्थ की बात करी थी, तो इट इज नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ also, both are integrated. So lot of schools have incorporated yoga, meditation. Apart from the sports education, physical education is very important. 2 periods per day for PT has been suggested by the CBSE, though it's a Herculean task to have it done. Good eating habits, especially in the foundational years. Making the children eat properly, get up in time, sleep in time, their daily routine, their physical fitness, their physical hygiene, personal and hygiene, all these things are important. Now this is about assessment, I will talk about it in detail later on. Now this is about examination. The recommendation of NEP for the examination, T-stage assessment, then moving away from rote learning, achievement of LOs, and then result of school examinations. So we are not going into the kind of a tight compartmentalization of the examination. Rather, we are going to take an examination as a learning tool. That is what is required. We are not going to play that. क्योंकि मैं इसमें से बहुत सारी चीजें इसलिए छोड़ रही हूँ, सर काफी कुछ इसमें से ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है? Now you have a handout with you. You have a handout with you, handout number 2. Just take it out. Handout number 2. Now what does this handout says? Now look at this handout. It says, keeping in view the NEP 2020 recommendations, you have to enlist the CBSE initiatives against the given below areas. अब आपको ये बताना है सर फोटो सेशन खत्म हो गया था। ऐसा है, प्रैक्टिकली करते हुए फोटो लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर पोस्ट बनवा के लोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रेनिंग के लिए आए थे, है ना? फिर लगेगा अरे ये तो स्पेशल फोटो सेशन किया गया है। सो लाइक अभी मैंने बड़ी एक्टिविटी करनी है, चिंता ना करिए, तब लीजिए एडमिट। सो इसके अंदर आपको ये बताना है कि आपने कौन कौन से आपको इनिशिएटिव सीबीएसई के बताना है। लाइफ स्किल एंड 21st सेंचुरी स्किल्स प्रमोट करने के लिए सीबीएसई क्या आपको नॉलेज में है कि कोई ऐसा प्रपोजल दिया हुआ है या कोई ऐसा चल रहा है प्रोग्राम सीबीएसई का? ट्राई टू डिस्कस विद ईच अदर एंड थिंक यू राइट, इट्स अ ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल वर्क नहीं है। आप एक दूसरे से डिस्कस करके भी लिख सकते हैं। Quickly, within 5 minutes, you have to finish it. इनिशिएटिव क्या है?
आपको सीबीएसई के इनिशिएटिव्स लिखते हैं कि सीबीएसई ने क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव किया है इस बारे में, और है तो क्या है? Only 2 attempts. Very good. Yes, next table. वही छोड़ दीजिए. ये मैम उसे मत हटाओ ना, उसको नहीं करने दो. हाँ, आपने और Yes, very good. Yes, can we have the next group? आ जाइए जल्दी से. Hello. पीछे 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 पीछे. Very nice. वही छोड़ दीजिए. Yes. Very nice. Wow. Yes, anyone else is there? नीचे से पकड़ के. सीधा करो, सीधा. Very nice. Very nice. So can we have a round of applause for everyone? नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और वो जरूरी है. उसके बाद आप चले जाओगे. ठीक है, अभी मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात करो. लेकिन कुछ 100 स्लाइड्स में से 20 स्लाइड्स को स्किप करके अगर मैंने आपको ये एक्टिविटी बंद करा के और आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको इंटरेस्ट भी आया, आप इन्वॉल्व भी हुए और आपकी एक स्किल डेवलप. वो स्किल क्या डेवलप हुई? वो स्किल ये डेवलप हुई कि क्या मैं अपने किसी बोरिंग टॉपिक के लिए जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्लास में, कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करके बताऊं. एंड बिलीव इट, इफ यू आर डूइंग इट थ्रू एक्टिविटीज, इफ यू आर डूइंग इट थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन, दे विल नेवर एवर फॉरगेट दैट. अभी मैंने जो आपको बड़ी फ्लो के साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ी देर पहले सुनाया था, वो मैंने क्लास 6 में सीखा. आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई एम प्योर लिटरेचर पर्सन. ठीक है, मैंने साइंस वही 9-10 तक जो कंपल्सरी होता है वही पढ़ी है. उसके बाद सदियों से कह सकते हैं कि मेरा साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं रहा, एकेडमिकली साइंस के साथ. तो वैसे तो हम सभी जिस एज में जी रहे हैं, लेकिन मैंने प्योर साइंसेस नहीं पढ़ी. लेकिन मुझे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है. क्यों याद है? क्योंकि मेरी साइंस की टीचर ने उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 80s व्हेन आई वाज इन स्कूल, माय क्लास 6 साइंस टीचर has taught Archimedes principle, not reading it through the book or not writing on the blackboard. Rather, she brought a tub with the water in the class, put it on the teacher's table, brought a tiny ship, toy ship, with a measuring instrument, and she did that practically. She did that experiment
experiment with us How nice. and made us to understand कि जब जब कोई heavy object कैसे तैरता है कि जितना उसका weight होता है उतना ही जो liquid होता है वो नीचे से displace हो जाता है तो balance हो जाता है. इस law को Archimedes का principle कहते हैं. That was the concept that was being reached. First she gave us this demonstration, then she explained that, and after that she wrote that Archimedes principle on the blackboard. And then she told us, इसे Archimedes principle कहते हैं. So that was the change in the pedagogy. और ये pedagogy नहीं है. अगर सन 1980 में टीचर ऐसे पढ़ाते थे, तो ऐसा नहीं है कि हम 2026 में ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है ना? उस समय के रिसोर्सेज देखिए. हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने वाले बच्चे थे. हमारे जमाने में चौक भी वो डस्ट वाले होते थे. अब तो डस्टलेस चौक से लेकर और स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड और कौन से वो पैनल्स आ गए हैं, डिजिटल पैनल्स आ गए हैं, जबकि हम 3D में बच्चों को सिखा सकते हैं. So when we have equipped with so many things, सर आप बस कर दो इसे, नहीं तो मुझे आपकी टेबल को आगे बुलाना पड़ेगा. यहाँ बिठा दीजिए. हाँ जी, स्मार्ट बॉयज. सर कैन आई हैव योर अटेंशन? No, still not attending. Make them sit on separate tables, like individually on one सर table. आप बस करो. Yes. So what I meant to say is that see हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों लंबा आपको शाम को 5 तक बिठा सकते हैं. अब वही वाली बात है, जब बच्चे नहीं मानते तो स्टे लगाना पड़ता होते हैं. है. स्टे लेना पड़ता है. स्टे बैक करा देंगे हम. Right? Here we are हम forgetting तो the देखो कुछ नहीं रोक NDP. सकते हैं. हमारे पास तो 5 मिनट आपको रुकने का पूरा लाइसेंस है. गुड स्टूडेंट को जल्दी भेज देंगे. बिल्कुल. ऐसे नहीं होता, क्लास पूरी चलती है. Right? So these are pedagogical interventions which CBSE has come up with. One is that principal is the pedagogical leader. So the principal makes the annual curriculum plan, and then of course with the help of you all, that plan is being made. And then you have implementation of the experiential learning pedagogy. And this is what we did. This is what experiential learning pedagogy is. And then art integrated work. Now it is not only for 9th and 10th, it is across the classes we are doing it. We are doing it from class 3rd onward. Art integration. We are not doing it only for 9th and 10th, we are doing it from class 3rd onward. और ये जो हमने बनाया है, ये आर्ट इंटीग्रेशन ही है. ये आर्ट इंटीग्रेशन ही है ना. There were ice cream sticks which you used and you created something new. तो जब आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा साथ ही पेडागोजी की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी थोड़ा सा टच करना चाहूँगी. आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. आई बिलीव यू ऑल हैव स्टडीड इन. I will tell you. At the beginning of the session, मैंने सारे चैप्टर एक साथ लिखे और हर एक बच्चे को अपनी क्लास के एक चैप्टर असाइन कर दिया at the beginning of the session. ठीक है? ये उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 1 महीने का टाइम देता हूं उसे. 1 month you have time. Use your pace. You have to prepare a PowerPoint presentation on the chapter. First thing. Second, use videos, use pictures, graphs, data, whatever you can use, or AI. And then, after 1 month, you are standing here and delivering the lecture of your chapter. And I do every year. I am doing this continuously. And this is giving one of the most wonderful results. I haven't taught that chapter, but they are doing. I will teach all the chapters, no doubt.
he or she will never forget that chapter in his or her entire life. कभी नहीं भूल सकता बच्चा। ठीक है। Now, this is one pedagogy which we must use in our classroom. Now, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक जिस टेबल को दे रखा है वहां पे जाके उसी टॉपिक के बारे में लिखना है, अपने वाले टॉपिक के बारे में नहीं लिखना है जो आपको मिला है। जो उस टेबल पे टॉपिक है उसके बारे में आपको लिखना है। क्लियर? तीसरा इंस्ट्रक्शन ये ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी लिखें वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी पहले किसी ने ना लिखा हो नहीं तो नेगेटिव मार्क्स। क्यों? वहां पे पढ़े लिखे नहीं है और लिखा गया सामने आपके लिखा हुआ है और आप सेम चीज तो नहीं लिखेंगे ना। हाँ, क्लियर? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, when you are moving, it is important that we maintain. नहीं, मैंने ये कभी कहा ही नहीं। मैंने सुबह ही बोला था बच्चे बन के रहना है। Sometimes what happens, it is said, अभी मैं मैम से बात भी कर रहा था तो मैं कह रही थी कभी-कभी तो क्लास में ये होता है कि शोर रहा होता है तो देखना पड़ता है। It is said that in a noisy classroom, teaching learning does not take place, but I don't believe it. Probably the best learning takes place in the noisy classroom. नहीं। अगर किसी को फोन यूज करते हुए देख लिया तो फोन मैं रख लूंगा अपने पास। अगर मैंने फोन अपने पास रख लिया तो सोचिएगा नहीं।
मैंने कब कहा माई फोन है? Okay. 1, 2, 3, change. फोन यहाँ हाँ नहीं ये नहीं यहाँ बच्चों पे बात भी कीजिएगा, पहले अपने पे कर लीजिएगा. When we came today in the morning, so there was a set of mind that okay ये काम करना है, 50 घंटे की ट्रेनिंग है जिसमें 25 कंप्लीट कर रहे हैं, तो चलते हैं खाना पूर्ति करके आया. Barrier. Lack of motivation. You are yourself not motivated. And if you are not motivated, how you are going to motivate others? So the first thing is motivate yourself. It is not applicable or I am not saying for everyone, but concept rule of 80-20 हर जगह चलता है. ठीक है. Then emotional problems. Yes, stress, anxiety, fear, सब में होता है. अभी भी स्ट्रेस है, ठीक है, जाने का स्ट्रेस है. कितने बजे छोड़ेंगे सर? सर कह रहे हैं हम 4:30 बजे से पहले छोड़ेंगे. ये क्या बात होती है सर? दूर से आए, जाने दो, है ना? देखा मैम कह रही ये तो सही कह रही है सर. ठीक है. सो लाइफ में जब कुछ सीखने की सोचते हो तो कुछ भी बैरियर नहीं बचता है, और जब आप सीखने की नहीं सोचोगे तो 100 चीजें हैं बैरियर. थर्ड, लर्निंग डिफिकल्टीज. यस, व्हेन यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम, आजकल के क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं, यानी आपकी क्लास में एडीएचडी का बच्चा भी बैठा होगा, ठीक है, डिस्लेक्सिक बच्चा भी बैठा होगा. All children will not be able to do as per your pace. This is another issue. So your teaching should be based on IEPs, individualized educational plans. That is also one issue which we should do. So then poor teaching methods. This is another important thing. Why child lose interest in लर्निंग? बच्चा कहता है छोड़ो ना, क्या आया जाएगा क्लास में, जाके मैं क्या कहते या तो यूट्यूब में पढ़ लूंगा या फिर मैं जाके क्या कहते ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ लूंगा. हाँ, इंटरेस्ट. प्रोबेबली वी आर नॉट kindling that interest in them for their class. 2 बजे मेरे पास कई सारे लोग थे कि हमें जाना है, जल्दी कीजिएगा सर, खत्म कीजिएगा. लेकिन जब मैंने ये एक्टिविटी कराई उसमें किसी को ये ध्यान नहीं था कि जाना है, ये एक्टिविटी मुझे करनी है. एंड एवरीवन पार्टिसिपेटेड, एंड फॉर दैट क्लैप फॉर ईच वन ऑफ यू प्लीज. और सर आप आइए, मैं चाहूंगा कि आप सबको ये टॉफी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. एक टॉफी सबको, because you participated, so you deserve that. Okay, chocolate will be given, don't worry. Then there is another important thing, language barrier. At this class, if we continuously teach in English only, then there will be a problem. Bilingual method. So language is a barrier, and we must assume that in our classroom diverse language group is sitting, especially if you are in Delhi. I am telling you, your classroom has
Sindhi also, Malayali also, Punjabi also, Rajasthani also. Delhi classrooms are one of the most diverse classrooms in India, जहाँ पे हर तरीके के लोग हैं. Clear? So that is another issue. Then classroom environment. Yes. सबको मिल गया? कोई तो नहीं गया? सबको मिल गया? Please. So when we are in classroom, we need to understand the environment. In the morning, I began the session with activity. Why? To create a learning environment. That is the most important thing we need to understand. If your class is attracted to your teaching and you have a conducive environment in your classroom, then definitely students will attend your classroom. एक एग्जाम्पल देता हूँ. When I was teaching during COVID time, तो सब कुछ तो ऑनलाइन था. तो ऑनलाइन टाइम में जब हम लोग क्लास लेते थे, वैसे तो नॉर्मली क्लासरूम में पढ़ाते थे, लेकिन कोविड टाइम में जब ऑनलाइन क्लासेस में ले रहा था, तो मुझे जो फीडबैक मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का आया, वो फीडबैक ये था कि सर आपकी क्लास के लिए स्पेशली हम अपने बच्चे के साथ बैठ करके पढ़ते हैं. मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या मुझ पे भरोसा नहीं? कहा नहीं सर, इसलिए बैठते हैं क्योंकि आपकी क्लास में जब हम बैठते हैं ना, तो आप सिर्फ बच्चों को ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे होते, आप बच्चों को लाइफ सिखा रहे होते हैं और वो हमारे काम बहुत आती है. हम ये समझ पाते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे हैंडल करें और अपनी लाइफ को हम कैसे हैंडल करें. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो व्हेन योर क्लासरूम कैरीज दैट एथिक्स, वैल्यूज, only then your classroom will have such an environment where child will try to learn. सिर्फ घूसे के दम पे नहीं होता है सब कुछ. Corporal punishment is bad. Socio-economic issues, yes. In the classroom setup, we have different sets of people coming from different social economic background. Everyone does not have equal access to resources. That is also a barrier in learning. And NEP is trying to remove that barrier so that education is available to each and every one. And then physical barrier. Yes, disabilities are there, health issues are there, isn't it? So we need to create in our classroom such an environment where even a disabled child can also come and attend your classes. He is also given the opportunity to learn equally. So these are the barriers of learning which we normally see. Parental pressure also, sir. How can environment That is a different thing. Absolutely. Parental pressure की जब हम बात करते हैं, so parental pressure से ज्यादा societal pressure है. ठीक है. और सोसाइटी का प्रेशर ऐसा है, माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा वो सामने वाले क्या करते, देखो चाचा का लड़का ये कर रहा है, ताया का लड़का ये कर रहा है, और तुम ये करोगे, ह्यूमैनिटीज ले लोगे तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी. और फिर 3 इडियट्स में फरहान ने जो डायलॉग बोला था, ठीक है, कि शर्मा जी क्या सोचेंगे, शर्मा जी क्या सोचेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है. शर्मा जी कंधे पे बिठा करके दिखाने नहीं ले गए थे, उन्होंने एसी नहीं लगवाया था. माँ बाप क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है, और माँ बाप को समझने की जरूरत है. Even sir, I discussed with our parent and he said, ma'am, just you see this time we are having only 1 year to children. Mostly hardly one this time we see. So our all expectation from this child. So we are also prescribing to this child. पैरेंटल प्रेशर आप समझ रहे हैं क्या है? जो हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चे से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. दिस इज अ प्रॉब्लम. और 4 लोग
लोग क्या कहेंगे जानते हो? 4 लोग क्या कहते हैं? 4 लोग कहते हैं अंत में राम नाम सत्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। इट डजंट मैटर, डोंट बॉदर अबाउट देम, नीदर योर चाइल्ड शुड बॉदर अबाउट देम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 लोग अंत में सिर्फ एक ही चीज कहने के लिए आते हैं और वो है राम नाम सत्य है। बाकी उसके बाद 4 कॉर्नर सब अलग अलग बोलेंगे, इसलिए कोई एक से यूनिसन में कुछ नहीं बोलता है। इसलिए 4 लोगों की चिंता मत कीजिए, 4 लोग क्या कहेंगे लीव देम। आपके बच्चे के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, और अपनी एस्पिरेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चे पे नहीं थोपनी है, ये भी ध्यान रखना। आप नहीं कर पाए इसलिए वो मेरा बच्चा मेरा ड्रीम पूरा करेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। और अक्सर यही होता है कि मेरा बच्चा मेरा ड्रीम पूरा करेगा। यस मैम। बच्चों ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया और देन तो गाइडेंस के लिए टीचर होते हैं ना। किस लिए होते हैं? टीचर का काम ही है बच्चे के अंदर पोटेंशियल देख करके उसको गाइड करना। आप सब लोगों ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का नाम सुन रखा है, आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है उसके बारे में, लेकिन उसे क्लास में कभी अप्लाई किया है? ये एक ड्रॉबैक है जो मैं करता हूं। In my school, I have made it mandatory that at the beginning of the session, शुरुआत में, ठीक है, एक लिस्ट दी जाती है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 3rd ऑनवर्ड्स, किस क्लास के ऑनवर्ड्स? 3rd ऑनवर्ड्स बच्चे से फिल कराए जाते हैं, और उसमें स्कोरिंग होती है, और उस स्कोरिंग को देखने के बाद हम उसी के बेस पर डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को किस फील्ड में पुश करना है। क्लियरली अगर बच्चा, ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा दिखा रहा है, रिदमिक, तो उसे किसमें डालोगे? म्यूजिक को उसमें प्रमोट कीजिए। अगर एथलेटिक्स वाले इंटेलिजेंस में ज्यादा है, यूजेस बॉडी पार्ट्स, काइनेस्थेटिक है, अगर उसका ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? उसे स्पोर्ट्स में डालिए। अगर बच्चा इंटरपर्सनल में बेटर है, तो लेट हिम बी द लीडर, प्रमोट हिम फॉर द डिबेट्स। सो multiple intelligence at the beginning of the session I do this, and what happens? That's why when I ask, normally at the year I have not asked, that I always ask that how many of you can say that you know your every single child in your class. हर एक बच्चे के बारे में सब कुछ आपको पता है, क्या पोटेंशियल उसका पता है, सब कुछ। कोई मुझे हाँ नहीं कहता है, क्यों? क्योंकि आपने ये वाला असेसमेंट नहीं किया है। अगर आप ये असेसमेंट कर दें बच्चे का, तो आपको अपनी क्लास के सारे बच्चों के बारे में आसानी से सब कुछ पता होगा। हम सबके अंदर सारे पोटेंशियल होते हैं, लेकिन कुछ ही ज्यादा दिखते हैं। अब किसी के अंदर अगर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो वो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, अगर है तो मैथ्स और इन्हीं फील्ड में जाएगा, इंजीनियर होगा। बट ऑब्वियस है, डिपेंडिंग ऑन दैट इंटेलिजेंस द फील्ड इज डिसाइडेड। साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो अप्लाई करने चाहिए। ये नहीं मुझको ये देखिए, एक होता है एटीट्यूड ऑफ लर्निंग और एक होता है एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग। एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है, पसंद तो मुझे बहुत कुछ है करना, लेकिन अगर मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है तो क्या मैं सीखूंगा वो? दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ में आ रही है क्या बात समझा रहा हूं? सो इफेक्टिव टीचिंग, एक इफेक्टिव टीचर्स क्या करते हैं अपनी क्लासेस में? दे बिलीव एवरी स्टूडेंट कैन इंप्रूव। लेबलिंग नहीं करते बच्चों की, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा, और ये हम अक्सर करते हैं। तू तो गया हुआ केस है, ये तो कहते ना, पूछे कोई आपसे पूछा, प्रिंसिपल पूछा इसके बारे में कुछ बताओ यार, सर ये तो गया हुआ केस है, गॉन केस है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेबल करते हैं, और जब आप किसी बच्चे को कोई लेबल कर देते हैं ना, तो वो फिर वैसा बन जाता है, वो होता भी नहीं है ना। आप 10 बार
ठीक है, सेम चीज बोलोगे ना, अलग अलग लोग सेम चीज बोलेंगे तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा मैं हूं ऐसा, और वो वैसा ही बिहेव करने लगता है। साउथ इंडिया में एक ट्राइबल एरिया है और वहां पे पेड़ वो लोग काटते नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, जब उन्हें वो कोई पेड़ काटना होता है तो डेली जाके उसको गाली देते हैं पेड़ को। पेड़ धीरे धीरे अपने आप मुरझा जाता है और मुरझा करके सूख जाता है, फिर उसके बाद उसे काट देते हैं। ग्रीन पेड़ को कभी नहीं काटते। मतलब इट हर्ट्स, इजंट इट, जब एक पेड़ भी ये चीज समझता है तो हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, बच्चा तो समझेगा। हमें भी अगर एक बार कोई कोऑर्डिनेटर ही बुला करके सिर्फ बोल देगी सर या मैम आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ, लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, बात चुप जाएगी। अच्छा मेरे को ऐसे बोल दिया, खुद को कितना पता है। तो जब आपको चुप सकती है बात, वो तो बच्चे हैं, आपसे भी सिंप्लीफाइड है, आपकी हर बात उनको लगती है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दे टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन नहीं है कि F इक्वल टू M इंटू A, नहीं बता रही थी मैम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें मैम ने जो अप्लाई किया था रूल ये था F इक्वल टू M इंटू A। So we need to understand the concept very well. बच्चे को ऐसा सिखाओ कि वो समझे, लाइफ में कभी उसे ना भूले। हमें भूल बहुत सारी चीजें नहीं भूले। एबीसीडी आप पढ़ के आए बचपन से आज तक, भूले क्या कभी? नहीं भूले। काखा का भले भूल गए होंगे कुछ लोग, नहीं बोले। याद है? कौन कह सकता है कि काखा का याद है? मुझे याद है। हाँ याद है, चलो गुड। सो दे आस्क बेटर क्वेश्चन देन दे गिव आंसर्स। याद है आपको, मैंने सुबह जो वीडियो दिखाया क्रिएटिविटी वाला, एजुकेशन प्रॉब्लम, डोंट गिव आंसर्स, आस्क देम टू आस्क क्वेश्चंस। इफ दे हैव दैट इंक्विजिटिवनेस, किंडल करो वो, so that they try to learn by themselves also. आंसर नहीं देने आपने हर चीज को प्लेटर पे। प्रॉब्लम यही है, स्पून फीडिंग हम करते हैं बच्चे को। अरे खुद कुछ समझने दो, खुद तो लर्न करने दो। इसी कॉन्सेप्ट को जब मैंने कहा कि मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन हर एक बच्चे को एक चैप्टर एलोकेट करता हूं, क्यों? बिना पढ़ाए एलोकेट कर देता हूं। अरे खुद तो समझो कुछ। लेट द चाइल्ड बी सेल्फ डिपेंडेंट। हर जगह मैं नहीं मिलूंगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं बेटा मैं यहां तो हूं, लाइफ में आगे जाओगे तब मैं नहीं मिलूंगा। हालांकि मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल है, पिछले 20 सालों से मेरा सेम नंबर है, मैंने नंबर आज तक नहीं बदला है। जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, और मुझे कॉल्स आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके, क्योंकि मेरे बच्चे वहां पे हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है। और वो जब कभी फंसते हैं कहीं पे प्रॉब्लम पे, तो कॉल जरूर करते हैं मुझे, और कभी नहीं करेंगे तो टीचर्स डे पे जरूर करते हैं। सो यू हैव टू earn that thing, and that can be earned when you have something unique in you. USP होनी चाहिए आपकी कोई USP होनी चाहिए ना, वो बोलते हैं ना यूनिक सेलिंग प्राइस। सो आपकी भी कुछ USP होनी चाहिए जिसके लिए बच्चे आपको याद करें। अदरवाइज हमें भी ये पता है कि हमारी 40 लोगों की बच्चों की अगर क्लास है तो 40 में, ठीक है, लाइफ में जब कभी बाद में याद रहेंगे तो 2 ही तरीके के बच्चे याद रह जाते हैं, क्योंकि उनकी USP होती है। या तो बहुत अच्छे वाले याद रह जाते हैं, या तो बहुत खराब वाले याद रहे। दोनों की USP है, दोनों की USP है, और इसीलिए वो हमें याद है। जो एवरेज थे वो जीवन में एवरेज रह गए। ठीक है। सो
So they adapt when students don't understand. अगर बच्चे को एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज करो, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करो, शायद बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा. Then they connect lesson to real life. What happened? I was teaching geography and the chapter was human settlements. Chapter 10 grade 12 को पढ़ा रहा था और पढ़ाते हुए अचानक से कोविड टाइम पीरियड में मुझे पढ़ा तो बहुत सालों से रहा था, लेकिन उस समय आया और उस समय मुझे याद आया. तो मैं पढ़ा रहा था, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी. एक गाना है किसी रणबीर कपूर की मूवी का है, पर टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय तेरा घाघा, ठीक है, पंजाब से लेके नहीं क्या बगदाद से लेके दिल्ली वाया. अब आपको बताता हूं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये लिखा हुआ था ह्यूमन सेटलमेंट के उस चैप्टर में कि जो पहला का जो ट्रेडिंग रूट था वो बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा, ये लाइन लिखी हुई थी. मैंने वो वहां से कनेक्ट की बच्चों को और जीवन में वो कभी नहीं भूल सकते उस लाइन को. क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ थी, वो गाना कभी नहीं भूल सकते. अगर मुझे 6 स्टेज लॉगिंग सिस्टम पढ़ाना है कि पनामा कैनाल में पानी के साथ, क्योंकि गहराई ज्यादा है, कहीं ऊंचाई ज्यादा है, तो शिप कैसे चलते हैं, मैंने ऑगी एंड कॉकरोचेस निकाला. सोचो, मैं एक दिन देख रहा था टीवी, मेरी डॉटर देख रही थी और उसमें मुझे ऑगी एंड कॉकरोचेस देखा और उसमें बॉब और क्या कहते हैं वो जा रहे थे. वहां से मुझे आइडिया आया, मैंने वो वीडियो दिखाया बच्चों को. वो कभी नहीं भूल सकते उस चीज को. ऑगी एंड मैं लाइफ में आप जब पढ़ा रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए जहां से उनके कनेक्ट हो, वो फील करेंगे और वो कभी नहीं भूलेंगे. So those are the things which we do in real life. Clear? Then they listen more than they speak. Yes, listening is important as a teacher. A good speaker is one who is a good listener. So सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए. आप तो टीचर हैं, बोलने का काम मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन बोलने के साथ सुनना भी जरूरी है. और बच्चों की अगर आप सुनेंगे तो शायद एक अच्छे टीचर बन पाएंगे. ठीक. देन दे गिव टाइम एंड मीनिंगफुल फीडबैक. जब मैं मीनिंगफुल कहता हूं, नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिए जाते हैं फीडबैक में, हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए. नहीं कर पा रहा है फिर भी यू कैन डू बेटर बाय डूइंग दिस. पॉजिटिव फीडबैक दीजिए. अब तो आपको पता है ना, आप रिपोर्ट कार्ड में भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं लिख सकते. अभी हम एचपीसी की और क्या इनकी बात कर रहे हो, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की, तो वहां पे भी आप नहीं लिख सकते थे नेगेटिव कमेंट, तो लिख ही नहीं सकते किसी बच्चे के बारे में. और अब तो वी आर डूइंग अवे विद रेड पेन. वी आर डूइंग अवे विद रेड पेन. नो चेकिंग विद रेड पेन. कोई भी रेड पेन से चेकिंग नहीं करेगा. यूज ब्लैक पेन और ब्लू पेन और पिंक पेन, जो प्रिंसिपल अलाउ करते हैं आपको यूज करने. प्रिंसिपल का ग्रीन मत यूज कर लेना. वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी हट गया है. आजकल हम भी ब्लू पे आ गए हैं सर. सो प्रिंसिपल फिर कुछ और यूज कर रहा होगा. वैसे प्रिंसिपल हमेशा ग्रीन पेन यूज करता है. Instead of 8.5, 5. they are marking 8.75. So ग्रीन पेन नहीं यूज करेंगे, ठीक है, पर ब्लैक या ब्लू पेन आप यूज कीजिए. पिंक कलर का पेन भी आता है आजकल, फ्लोरोसेंट आजकल तो जमाना ही अलग है. ऑरेंज भी आता है. कोई भी एक जो प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं वो यूज कीजिए, पर रेड पेन को अवॉइड कीजिए. रेड मींस डेंजर. इट इज अ सिंबल ऑफ डेंजर, इसलिए रेड लाइट पे रेड होता है, खतरा. So remove that, खतरा ही खत्म करो. Okay, and if you practice these 7 teaching habits, so you will practice and you will be a better teacher. That's for sure. ये मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस.
एक और पेडागॉजी जो आप यूज करते हैं क्लासरूम में जो होनी चाहिए और आपने यूज नहीं किया, एवरीवन मस्ट यूज दिस पेडागॉजी। दिस इज नोन एज माइंड मैप। क्या बोलते हैं इसे? माइंड मैप और स्प्रिंकल मैप। देयर इज अ फ्लो डायग्राम एंड देयर इज अ माइंड मैप। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें हैं। फ्लो डायग्राम सीक्वेंशियल होता है, ठीक है, एक के बाद एक, फिर सीक्वेंस में क्या लिखते हैं उसका पूरा दिखाया जाता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपने किया तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन, ठीक, सो वी क्लासिफाई, दैट इज अ फ्लो डायग्राम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड मैप, इट यूजेस कलर कोडिंग एंड दिस इज साइंटिफिक। जब आप फ्लो डायग्राम यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं, लेकिन जब आप माइंड मैप बनाते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों यूज करते हैं। और हमें अच्छी तरीके से पता है हमारा जो ब्रेन है वो कलर के कॉम्बिनेशंस को समझता है और इसीलिए यहां पे कलर्स किए जाते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में एक कलर है, उसका इलैबोरेशन सब कुछ जितना भी कर रहा है। Clear? So what happens? I have made this mandatory. After the chapter is over, in my notebook, if the child has not attached this diagram, mind map, I will not check notebook. Notebook में ये एक चैप्टर, पूरे चैप्टर का जितने भी 15-20 पेज में लिखा है उसका एक क्रिस्प एक पेज में। और याद रखिए ये बच्चे को लर्निंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है जिस समय उसे रिवीजन करना होता है। एक पेज उसने देखा, उसे 20 पेज में जो पढ़ करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो 200 पेज में पढ़ के नहीं मिलेगा, आई एश्योर यू। और जितनी जल्दी वो ये 20 पेज को रिवाइज कर सकता है उतनी जल्दी वो 200 पेजेस नहीं रिवाइज कर सकता है। So please ensure that in your notebook the child has given this mind map at the end. कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया ना? ओके। मैम ने ऑलरेडी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बिहेवियरल एंड देन साइकोमोटर। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अर्लियर देयर वर 5 लेवल्स और अब वो चेंज हो गई है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक, नाउ यू सी evaluative type of question, remember, understanding, apply, analyze, evaluate। यहां पे कितने लिख रहे हैं? 5, but latest one, it has 6. The highest order is create। जो न्यू है उसमें क्या आ गया है नया? क्रिएट। सो सुबह आपको क्या दिया गया था करने के लिए? क्रिएट। Highest order of thinking, you created something new. This is creation. डिजाइन लर्निंग की जो बात करते हैं, डिजाइन थिंकिंग की जो बात करते हैं, ठीक, सो दैट इज क्रिएशन। व्हेन यू आस्क द चाइल्ड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट और क्रिएट एन ऐप, देन दैट इज क्रिएशन। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी टीचिंग को चेंज करना है। Coming to the last part of the session, that is lesson planning. मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं ताकि आपको जाने के लिए जल्दी क्या कहते हैं आप जा सकें।
सो लास्ट पार्ट आपका है लेसन प्लानिंग. When we talk about lesson plan, आप लोगों के पास टीचर्स डायरी है, प्लीज ओपन कर लीजिए जिनके पास टीचर डायरी है. Demo lesson, assessment and feedback, then remediation, then review and then assignment. Assignment भी आपको देना है और अब तो ये मैंडेटरी है कि आपके लेसन प्लान में आफ्टर टीचिंग So for the time break, as in Aisha, I observed actually at that time silently we all were listening. But when you gave this activity, we all were energetic. Okay, and after that, whatever you are going to just say, yeah, just guide us. We will see really, yeah, we will listen really very. I can say that sincere. Okay, now we all will listen that one. So it is good to just change our mind for another topic. This type of activity is very important. Not only this type, even any types of activity is important. So it gives us a different types of energy also, and we are ready to do another one also. Next level pe jane ke liye we all are energetic. So like this. So in my subject it is social science. So interestingly that I am saying I can correlate these activities also, because for suppose if I take anything about the plant and other things, so I will take time for that only to think about how I can correlate. But simply मेरा basic purpose है, my purpose is this कि class को energetic बनाने के लिए I can use this topic. कि मैम क्या कर रही है और all students are coming with me and my class is very happy. वेरी वेरी गुड. तो ये एक्टिविटी सबसे पहली चीज, दीज आर द ब्रेक थ्रू फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ द क्लासरूम. ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज करती है. सेकेंडली अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कभी भी कैटरपिलर कैसे बनाते हैं आइसक्रीम को यूज करके भूलेंगे. So what is intervention or what you call about the changes in the pedagogy that NEP is talking about is experiential learning. You have learned how to make a caterpillar and at the same time you have learned how to teach your topic using this. In the same manner, a child when is doing this activity in the class and learning the concept of height and distance, or maybe the concept of mass, or maybe the concept of description writing, will never forget that. तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है. आपने खुद बना के सीखा है, मैंने आपको बना के नहीं दिया. Wonderful, very nice. पीछे थोड़ा पीछे. Okay. Any other group is left? आइए सर जल्दी से आइए. Very nice. Very छोटी. Yes. The future self that I could be.
Keep on learning day by day, even when the skies are gray. One step forward, that's okay, knowledge lights the way. Every question, every test, teaching me to give my best. This journey's long, but I won't sway. Keep on learning day by day. Some days the answers flow with ease. Other times I'm brought to my knees by problems I can't seem to solve. But as the days and weeks evolve, I'm growing stronger than before. Each challenge opens up a door.